Okay. See, in the last lecture, we have seen the measurement of conductivity. Means how to measure the conductivity and molar conductivity. To measure the conductivity and molar conductivity, we have to use the conductivity cell. Now, conductivity cell has a constant, and that is called as the cell constant. What is the formula for the cell constant? L upon A, where L is the distance between the two electrodes and A is the cross-sectional area of the electrode. Okay, that is one way. Now we'll see how to. Suppose if they have given the value of L and if they have given the value of A, then we can find out the value of cell constant. But suppose if the value of the L and A is not given, then how will you find out the cell constant? Cell constant कैसे find out करना पड़ेगा? Yes, how to find out the cell constant. So what we do here, we are having one experiment. You know, in the experiment, first we take with solution KCl. KCl of different concentration, अलग-अलग concentration. कौन-कौन सी concentration हमारे पास है? For KCl, we can have which concentration? 1 molar, 0.1 molar, 0.001. तीनों में से कोई एक ले लो. KCl solution. और यहाँ पे KCl solution लेने के बाद KCl solution का conductivity मालूम है. तो KCl solution का क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? रेजिस्टेंस. तो यहाँ पे हमें विस्टोन ब्रिज एक्सपेरिमेंट से KCl का रेजिस्टेंस मिल जाएगा और हमें KCl का कंडक्टिविटी मालूम है. तो सबसे पहला स्टेप क्या आएगा हमारे पास? द फर्स्ट स्टेप विल बी द फर्स्ट स्टेप, दैट इज टू फाइंड आउट द सेल कांस्टेंट. Cell constant is equal to what? Conductivity of KCl into resistance of KCl. Conductivity of the KCl into resistance of KCl. Okay, second formula. Now once we get the cell constant, then we can find out the conductivity. Conductivity is K. K is equal to what? Cell constant divided by the resistance of the solution. And third, then we can find out the molar conductivity. Molar conductivity given by with symbol lambda, and that is equal to what? K, जो हमें यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगा conductivity into 1000 divided by C, the concentration of the solution. तो आज हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं और ये तीन फॉर्मूला हमें यूज करना है. सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? सेल कांस्टेंट. सेल कांस्टेंट मिलने के बाद क्या फाइंड आउट करना है हमें? कंडक्टिविटी. एंड कंडक्टिविटी फाइंड आउट करने के बाद हमें फाइंड आउट करना है मोलार कंडक्टिविटी. ओके, तो आई विल स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल फर्स्ट. ओके, तो शेयर द न्यूमेरिकल विथ यू. यहाँ पे टेक्स्ट बुक में एक ही न्यूमेरिकल दिया हुआ है, तो बाद में मैं दूसरा न्यूमेरिकल शेयर करूंगा. रीड द न्यूमेरिकल फर्स्ट. इसमें सर म्यूट करा ना तुम्हारा, माझा आवाज येते. ओ सॉरी. कंडक्टिविटी सेल दिया हुआ है. कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग व्हाट? 0.01 मोलार KCl. मतलब पहले बीकर में हमें क्या लेना है? KCl सॉल्यूशन लेना है और KCl का 25 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस कितना है? देखो 604 है. मतलब उन्होंने पहले सबसे पहले क्या किया? बीकर में पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन लिया. पोटेशियम क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलार है और पोटेशियम क्लोराइड का उन्होंने रेजिस्टेंस मेजर किया. रेजिस्टेंस कितना है? देखो 604 ohms है. और यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है the molar conductivity of KCl is how much? 0.00141 per ohm per centimeter. So here see they have given the information. This is the problem from page number 97. It is a solved problem, problem number 5.5. And in this problem, देखो उन्होंने सबसे पहले क्या दिया? They have given the information for potassium chloride. उन्होंने यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. क्या क्या दिया हुआ है? The first thing, they have given the concentration, that is 0.01 molar KCl. Okay.
कॉन्सेंट्रेशन के बाद उन्हें पोटेशियम क्लोराइड का रेजिस्टेंस दिया हुआ है. द रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेशियम क्लोराइड इज 604 ohms एंड द कंडक्टिविटी मतलब के मतलब कंडक्टिविटी ऑफ द पोटेशियम क्लोराइड इज 0.00141 per ohm per centimeter. Okay, per ohm per centimeter. देखो यहाँ पे उन्होंने बीकर में पहले क्या लिया है, पोटेशियम क्लोराइड लिया हुआ है. हमें पोटेशियम क्लोराइड का कंडक्टिविटी मालूम है. कितना कंडक्टिविटी है देखो यहाँ पे 0.00141. करेक्ट, कंडक्टिविटी मालूम है. फिर बाय यूजिंग विस्टोन ब्रिज उन्होंने पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन का क्या डिटरमाइन कर दिया, रेजिस्टेंस डिटरमाइन किया और रेजिस्टेंस कितना आ गया 604 आ गया. करेक्ट, तो हमें पोटेशियम क्लोराइड का रेजिस्टेंस मालूम है, पोटेशियम क्लोराइड का कंडक्टिविटी मालूम है. करेक्ट, तो वी कैन यूज द फर्स्ट फॉर्मूला. सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू कंडक्टिविटी ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इनटू रेजिस्टेंस ऑफ पोटेशियम क्लोराइड. करेक्ट, सो आई जस्ट राइट डाउन द फर्स्ट फॉर्मूला. Cell constant is equal to conductivity of potassium chloride into resistance of potassium chloride. Correct? So conductivity of the potassium chloride is how much? 0. So right here 0.00141. Okay, into the resistance. The resistance is 604. तो ये दोनों नंबर में मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे. ऑफ कोर्स अगर मल्टीप्लिकेशन इजी रहेगा तो आप मैन्युअली कर सकते हो, लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन इजी नहीं रहेगा देन यू हैव टू यूज अ लॉग बुक, मतलब लॉग बुक से करना पड़ेगा. लेकिन ठीक है, अगर आप यहाँ पे मैन्युअली बोल सकते हो मुझे बोल दो 0.00141 को 604 से मल्टीप्लाई करो. Yes, student, please multiply. Otherwise, 0.85164. 0.851. 164. 4 last. हाँ ठीक है, just this much 0.85164 if you want. Now I'll say unit. Now in the last lecture we have seen what is the unit of the cell constant. हमने cell constant का unit किया था. देखो cell constant का formula क्या था, length upon area. Length is in the meter and area is in the meter square. So 1 upon meter can be written as what? Per meter. But per meter is a SI unit. So per centimeter is a common unit. So हमें common unit use करना है यहाँ पे, because देखो यहाँ पे conductivity कौन से यूनिट में दिया है, per ohm per centimeter. Resistance कौन से यूनिट में दिया है, ओम में दिया. तो यहाँ पे अगर मैं यूनिट लिखूंगा, देखो यूनिट कैसे था, कंडक्टिविटी का यूनिट क्या है, देखो पर ओम पर सेंटीमीटर. कंडक्टिविटी का यूनिट है पर ओम पर सेंटीमीटर और रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम. तो ये ओम रेस टू -1 और ओम रेस टू +1 कैंसिल हो जाएगा. तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट पर सेंटीमीटर. तो हमारे सेल कांस्टेंट का यूनिट आएगा पर सेंटीमीटर. ओके, सेल कांस्टेंट मिला. सेल कांस्टेंट मिलने के बाद, सेल कांस्टेंट मिलने के बाद एक बार तुम्हें सेल कांस्टेंट मिल जाएगा, उसके बाद क्या करना है हमें, देखो बीकर में हम लोगों ने पोटेशियम क्लोराइड लिया था, हमें सेल कांस्टेंट मिल गया. अभी सेकेंड टाइम क्या करना है, बीकर में से पोटेशियम क्लोराइड निकाल दो और पोटेशियम क्लोराइड में नेक्स्ट सॉल्यूशन ले लो जिसका हमें कंडक्टिविटी फाइंड आउट करना है. रिप्लेस द पोटेशियम क्लोराइड विद द सॉल्यूशन whose conductivity we have to determine. करेक्ट. तो अभी नेक्स्ट देखो यहाँ पे मैंने क्या किया था, फिर हम लोगों ने बीकर में यहाँ पे क्या लिया, पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन निकाल दिया और पोटेशियम क्लोराइड की जगह क्या लिया, सिल्वर नाइट्रेट लिया और सिल्वर नाइट्रेट का रेजिस्टेंस मेजर कर दिया. सिल्वर नाइट्रेट का रेजिस्टेंस मेजर कर दिया. तो अभी देखो अपने प्रॉब्लम में ही देखो यहाँ पे गिवन हियर द सेम सेल जिसमें पहले पोटेशियम क्लोराइड लिया था, वो द सेम सेल क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज हमारा सेल कांस्टेंट सेम रहेगा इसीलिए.
the same cell containing 0.001 molar HgNO3 cell beaker में ले लिया and it gives the resistance of 6530 ohms और उसका resistance कितना आ गया 6530 ohms आ गया. So calculate the molar conductivity of 0.001 molar silver nitrate. मतलब सिल्वर नाइट्रेट का रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो सिल्वर नाइट्रेट का मोलार कंडक्टिविटी कितना रहेगा. करेक्ट. आई जस्ट राइट डाउन द इंफॉर्मेशन फर्स्ट. See here, now we'll write down the information for silver nitrate, AgNO3. Silver nitrate का concentration कितना दिया हुआ है 0.001 मोलार. सिल्वर नाइट्रेट का रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 6530 ओम. और सिल्वर नाइट्रेट का हमें क्या फाइंड आउट करना है मोलार कंडक्टिविटी. लेकिन मोलार कंडक्टिविटी के पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा कंडक्टिविटी. तो सिल्वर नाइट्रेट का हमें मोलार कंडक्टिविटी फाइंड आउट करना है. लेकिन मोलार कंडक्टिविटी के लिए हमें पहले क्या मालूम होना चाहिए कंडक्टिविटी. तो हमें मालूम है कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है कॉमन यूनिट पर ओम पर सेंटीमीटर. और मोलार कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. तुम्हें यूनिट्स मालूम होने चाहिए. ये कंडक्टिविटी का यूनिट है और ये मोलार कंडक्टिविटी का यूनिट है. ओके. तो नाउ जस्ट गो फॉर. अभी देखो यहाँ पे हमें सेल कांस्टेंट मिल गया. फिर हमें फाइंड आउट करना है कंडक्टिविटी. व्हाट इज कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी इक्वल टू सेल कांस्टेंट जो यहाँ पे हमें मिला हुआ है और अपॉन व्हाट रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस ऑफ विच सॉल्यूशन द रेजिस्टेंस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन. रेजिस्टेंस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन. तो आई यूज द सेकंड फॉर्मूला. Yes, so I'll write down the formula. Conductivity equal to cell constant divided by resistance of and resistance of which solution silver nitrate. So cell constant हमें मालूम है 0.85164. सिल्वर नाइट्रेट का रेजिस्टेंस 6530 ओम. करेक्ट. और हमें यहाँ पे कंडक्टिविटी मिलेगा. बट अगेन आई टेल यू ऑल कि देखो अगर नंबर देखने में बहुत नंबर बड़े हैं लॉग से करोगे तो ही अच्छा रहेगा. बट ठीक है अगर मैं लॉग से करना चाहता हूं तो क्या आएगा लॉग ऑफ 0.8516 माइनस लॉग ऑफ 6530. एवरी टाइम आई एम नॉट यूजिंग लॉग लेकिन बीच बीच में लॉग यूज कर थोड़ा प्रैक्टिस भी रहेगा. Okay, now tell me the log of 85 under 16. 85 under 16 मुझे log बोलो कितना रहा 85 under 16. Sir, 9432. 9302. Yes, 9302. Okay, and then tell me about 65 and 3. 65 and 3. Eight one four nine and subtraction. Correct. तो अभी subtraction अगर मैं करूंगा तो 12 minus 9 3 एंड यहाँ पे देखो -1 and -3 सॉरी -1 and -3 will become what -4. देखो समझ में आ रहा है क्या स्टूडेंट. यहाँ पे साइन है bar1 और यहाँ पे साइन है -3. करेक्ट. ये -3 और -1 -3 is -4 bar4. Now tell me the antilog of 11 under 53. Sir, 1304. 1304. So here we'll have 1.304 into 10 raised to -4. So we got the answer. So I'll just write down here 1.304 into 10 raised to. ऑलरेडी यहाँ पे bar4 है तो -4. एंड कंडक्टिविटी का यूनिट क्या आएगा. द यूनिट ऑफ द कंडक्टिविटी इज पर ओम
पर सेंटीमीटर। ओके, हमें कंडक्टिविटी मिला। और एक बार कंडक्टिविटी मिलने के बाद हमारा थर्ड फॉर्मूला कौन सा है, देखो, मोलार कंडक्टिविटी। द थर्ड फॉर्मूला इज मोलार कंडक्टिविटी, करेक्ट? So I'll use the third formula here now, that is molar conductivity is equal to, and molar conductivity given by which symbol, capital lambda, is equal to K into 1000 upon C. K into 1000 upon C. What is the value of the K we have got? 1.304 into 10 raised to minus 4 into 1000. 1000 यहाँ पे फॉर्मूला में ऑलरेडी है, और कॉन्सेंट्रेशन कितना था, तो यहाँ पे हम लोग देखो, वी आर फाइंडिंग आउट द इंफॉर्मेशन फॉर सिल्वर नाइट्रेट, और सिल्वर नाइट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे लें। सी मतलब व्हाट? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सिल्वर नाइट्रेट इज 0.001, 0.001, करेक्ट? सो अभी देखो यहाँ पे 1.304 into 10 raised to minus 4 into 1000, मतलब क्या आएगा, 10 raised to power plus 3 divided by 0.001 को आप क्या लिख सकते हो, 10 raised to power minus 3. ओके, सो 1.304 into 10 raised to minus 4 into, ये -3 ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा, +3. ये -3 ऊपर रहेगा तो क्या बनेगा, +3. तो यहाँ पे पावर कितना आएगा, 10 raised to 6. ये ऑलरेडी 3 है, और ये 3 ऊपर रहेंगे तो +6. नाउ हियर 1.304 into 10 raised to 6 minus 4 is 2, करेक्ट? अब आंसर ऐसे भी रख सकते हो, या मे बी वी कैन राइट डाउन एज व्हाट, 130.4 per ohm सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. ये हमारा मोलार कंडक्टिविटी है. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ मोलार कंडक्टिविटी. ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ मोलार कंडक्टिविटी. तो हम लोगों ने पहले सेल कांस्टेंट फाइंड आउट कर दिया, सेल कांस्टेंट के बाद कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर दिया, और कंडक्टिविटी के बाद मोलार कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर दिया, करेक्ट? नाउ आई जस्ट टेक द अदर्स. यहाँ पे अभी हमारे बुक में एक ही न्यूमेरिकल दिया हुआ है, तो मैं दूसरा और एक दो न्यूमेरिकल करेंगे तो थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. ओके, तो आई जस्ट टेक द अनदर वन. वन मिनट. देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल देखो, द कंडक्टिविटी सेल इज फिल्ड विथ, मतलब हमारा जो कंडक्टिविटी सेल है, सेल में पहले क्या लिया है हम लोगों ने, 0.01 मोलार पोटेशियम क्लोराइड लिया हुआ है. एट 25 डिग्री सेल्सियस द रेजिस्टेंस ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इज हाउ मच, 604 ohms. मतलब सबसे पहले हमने कंडक्टिविटी सेल में पोटेशियम क्लोराइड लिया हुआ है. पोटेशियम क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलार है, टेम्परेचर 25 डिग्री है, और उसका रेजिस्टेंस कितना मिल रहा है, 604. और पोटेशियम क्लोराइड का 0.01 मोलार पे कंडक्टिविटी कितना है, 0.00141. ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये वैल्यू कांस्टेंट है, करेक्ट? ओके, सो पोटेशियम, सो आई विल राइट डाउन व्हाट इंफॉर्मेशन दे हैव गिवन हियर. सो प्रॉब्लम यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रॉब्लम में लिख देता हूँ और डेटा लिख देता हूँ तो पता चलेगा. फर्स्ट आई विल राइट डाउन द इंफॉर्मेशन फॉर पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन. पोटेशियम क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 0.01 मोलार, 0.01 मोलार दिया हुआ है. ओके, देन पोटेशियम क्लोराइड का रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, एंड रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 604 ohms दिया हुआ है, एंड कंडक्टिविटी दिया हुआ है, एंड द कंडक्टिविटी दिया हुआ है 0.00141 पर ओम
per centimeter. See here, they have given the information of potassium chloride. पोटेशियम क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, पोटेशियम क्लोराइड का रेजिस्टेंस दिया हुआ है जो उन्होंने मेजर किया है, और कंडक्टिविटी हमें मालूम है, तो यू कैन फर्स्ट फाइंड आउट सेल कांस्टेंट. सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू, डायरेक्टली भी ऐसे लिख सकते हो, कंडक्टिविटी इनटू रेजिस्टेंस, ऐसे भी लिखोगे तो भी चलेगा, और ऐसे भी लिखोगे कंडक्टिविटी ऑफ द केसीएल, और यहाँ पे क्या लिखोगे आप, रेजिस्टेंस ऑफ केसीएल. लिखना कंपल्सरी नहीं, डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, cell constant is equal to K into R. K is called as conductivity of KCl and R is called as the resistance of KCl, and we'll substitute the value. Conductivity is 0.00141 and resistance is 604. Okay, I'll just do it by log. अगर हम log से करते हैं तो 0.00 1 मिनट, ये थोड़ा रेजिस्टेंस अलग है, मतलब यहाँ पे इस प्रॉब्लम में रेजिस्टेंस थोड़ा अलग है. मतलब सिल्वर नाइट्रेट दिया हुआ है, लेकिन सिल्वर नाइट्रेट का जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है, अभी जो न्यूमेरिकल हम लोगों ने किया उसमें 6530 था, और दूसरे में 65, सेम सम है ऑलमोस्ट. ठीक है, मैं दूसरा सम लेता हूँ अगर ऐसा है तो. ठीक है, थोड़ा वैल्यू अलग था, 1 मिनट. फिर दूसरा समय ले लेता हूँ, 1 मिनट. I'll just take the other sum there. Second sum देखो यहाँ पे, second sum. A conductivity cell is filled with 0.1 molar KCl. मतलब हमारा conductivity cell जो है वो किससे filled किया हुआ है, 0.1 molar KCl से filled किया हुआ है, और उसका रेजिस्टेंस कितना है देखो, 85.5 ओम्स है, और कंडक्टिविटी ऑफ द केसीएल एट 0.1 कितना दिया हुआ है, 0.01286 पर ओम पर सेंटीमीटर. ओके, तो ये प्रॉब्लम मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ बिकॉज ऑलमोस्ट डेटा सेम था दोनों का. दिस प्रॉब्लम विल कम आल्सो अंडर व्हिच कैटेगरी, एक्स्ट्रा में आ जाएगा. ओके, फॉर विच सॉल्यूशन, पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन, और पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन. और पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ है उन्होंने, 0.1 मोलर दिया हुआ है, करेक्ट. उसका रेजिस्टेंस उन्होंने मेजर किया हुआ है, कितना रेजिस्टेंस मेजर किया हुआ है, 85.5 ओम्स है. एंड कंडक्टिविटी ऑफ पोटेशियम क्लोराइड एट दिस कॉन्सेंट्रेशन, कंडक्टिविटी ऑफ द पोटेशियम क्लोराइड एट दिस कॉन्सेंट्रेशन कितनी कंडक्टिविटी है, 0.01286 पर ओम पर सेंटीमीटर, करेक्ट. तो अभी हमें देखो पोटेशियम क्लोराइड का रेजिस्टेंस मालूम है, पोटेशियम क्लोराइड का कंडक्टिविटी मालूम है, तो आई कैन फाइंड आउट सेल कांस्टेंट. सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू व्हाट, कंडक्टिविटी ऑफ द KCl इनटू रेजिस्टेंस ऑफ द KCl. सो कंडक्टिविटी ऑफ द KCl कितना दिया हुआ है, 0.01286 इनटू रेजिस्टेंस ऑफ द KCl कितना दिया हुआ है, 85.5. ओके, तो ये थोड़ा स्टेप में लॉग से बता दो तुम्हें. अगर हम लॉग करेंगे तो लॉग ऑफ 0.01286 प्लस लॉग ऑफ 85.5. देखो यहाँ पे तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक देने के लिए आना चाहिए. इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा, bar2, और इसका कैरेक्टरिस्टिक आएगा 1. नाउ टेल मी द लॉग ऑफ 1 2, मतलब 12 अंडर 86, 12 अंडर 86. Yes, 12 under 86, 1093. So 1093, और 85 under 5, 85 under 5. (9320). So 9320, करेक्ट, 9320. और यहाँ पे इंटू है, इंटू मतलब एडिशन. अगर मैं एडिशन करूंगा तो 3, 9 + 2 11, 3 + 1 4, 9 + 1 10, और यहाँ पे ये -2 है और ये +2 तो 0 आ जाएगा, 0 पॉइंट. सो नाउ टेल मी द एंटी लॉग ऑफ
कौन से नंबर का एंटी लॉग बताओगे आप? 04 अंडर 13, 04 अंडर 13। अच्छा रॉन्ग हुआ है क्या कुछ? ओके प्लीज वंस अगेन चेक लॉग ऑफ 1286, लॉग ऑफ 1286 थोड़ा चेक करो। प्लीज, because I have got the two different values now. Yes, 1286 का लॉग बोलो, किसी ने यहाँ पे डाला था लेकिन आई जस्ट, हाँ करेक्ट है ना, 1093 करेक्ट है। 65 नहीं 85, 65 नहीं 85, 85। तो दोनों लॉग करेक्ट है। शैल आई प्रोसीड? विघ्नेश दोनों लॉग करेक्ट है? ओके 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 वो ठीक सर है। बराबर है दोनों पर। ओके ठीक है, सुनाओ अभी ये नंबर क्या है? 0.0413। अभी मुझे एंटी लॉग बोलो। ओके नो प्रॉब्लम। 04 अंडर 13, 04 अंडर 13 का एंटी लॉग बोलो। यस इट इज 1100, लेकिन यहाँ पे 0 पॉइंट है। करेक्ट, थैंक यू। हाँ यहाँ पे 0 पॉइंट है तो क्या आएगा यहाँ पे? 0 मतलब तो यहाँ पे आएगा 1.1, 1.1। सो वी गॉट, सो हियर वी गॉट द आंसर 1.1। और सेल कांस्टेंट का कॉमन यूनिट क्या आएगा? पर सेंटीमीटर। तो वी गॉट द सेल कांस्टेंट हियर, the cell constant is 1.1 per centimeter. Okay, now once we got the cell constant, okay cell constant बाद में क्या करना है? देखो हमें बीकर में यहाँ पे सेकेंड देखो, KCl solution is now replaced by what? HCl। मतलब बीकर में से KCl solution निकाल दिया। अभी बीकर में कौन सा सोल्यूशन लिया हुआ है? HCl सोल्यूशन लिया हुआ है। और HCl का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? देखो 0.005 मोलार है। और उसके अंदर अभी कंडक्टिविटी सेल हम लोग डीप करेंगे और HCl का रेजिस्टेंस कितना मिल रहा है हमें? 529 मिल रहा है। और हमें फाइंड आउट करना है मोलार कंडक्टिविटी ऑफ HCl। हमें फाइंड आउट करना है molar conductivity of HCl. Okay, so I'll just write down here information for, they have given the information for which solution? HCl solution. Okay, HCl का concentration दिया हुआ है और HCl का concentration है 0.005 मोलार। HCl का रेजिस्टेंस है 529 और हमें फाइंड आउट करना है मोलार कंडक्टिविटी। लेकिन मोलार कंडक्टिविटी के पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कंडक्टिविटी। एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी? पर ओम पर सेंटीमीटर। एंड यूनिट ऑफ द मोलार कंडक्टिविटी इज पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर per mole. Okay, so now I'll start with the conductivity. Conductivity is equal to cell constant अपॉन आर। आर मतलब रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस किसका लोगे आप? HCl का। तो रेजिस्टेंस ऑफ HCl, ठीक है। व्हाट इज सेल कांस्टेंट वैल्यू? 1.1। रेजिस्टेंस इज 529। आई जस्ट डू इट बाय लॉग अगेन। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा लॉग ऑफ 1.1 माइनस लॉग ऑफ 529। अगर मैं करूंगा तो यहाँ पे आएगा 0 पॉइंट और यहाँ पे आएगा 2 पॉइंट। ओके, नाउ प्लीज टेल मी द लॉग ऑफ 11। 0414। ओके 0414, थैंक यू। और 52.9, 52.9, 7235, 7235। ओके थैंक यू। ना अभी दोनों को यहाँ पे अपॉन है तो हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्शन करूंगा तो ये हमारा सब्ट्रैक्शन आ रहा है
14 माइनस 5 करोगे तो 9 आ जाएगा, तो सब्ट्रैक्शन करेक्ट है। अभी यहाँ पे हमें एंटीलॉग देखना है, एंटीलॉग ऑफ द विच नंबर 31 अंडर 79, 31 अंडर Sir, 79, 2079. 2079, थैंक यू, 2079। तो यहाँ पे क्या आएगा 2.079 into 10 raised to minus 3. So we got the answer here 2.079 into 10 raised to minus 3. So this is the value of the conductivity and the unit is what? Per ohm per centimeter. तो ये हमारा conductivity का value आ गया. Now once we get the value of the conductivity, next is what? Molar conductivity, and the molar conductivity is what? K into 1000 upon C. What is conductivity? 2.079 into 10 raised to minus 3 into 1000. कॉन्सेंट्रेशन कितना था हमारा HCl का? 0.005. कॉन्सेंट्रेशन था हमारा 0.005. ओके, तो अभी देखो यहाँ पे 2.079 into 10 raised to minus 3 into 1000 can be written as 10 raised to power plus 3. 1000 can be written as the power 10 raised to plus 3 divided by 0.005. कैसे लिख सकते हो आप? 5 into 10 raised to minus 3. 0.005 can be written as what? 5 into 10 raised to minus 3. तो अभी ये होगा 10 raised to minus 3 माइनस कैंसिल हो जाएंगे, करेक्ट। अभी 5 से यहाँ पे डिवाइड करो, तो डिवाइड करो तो कितना आएगा? 0.54 जा 20, 5 1 जा 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, and then how many remaining here? 2 9 29. तो 29 मतलब 5 5 जा, तो 415 into 10 raised to 3. ओके, तो यहाँ पे आएगा फिर 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 415.9, एंड यूनिट क्या आएगा? पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इज द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। ये हमारा मोलर कंडक्टिविटी है पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ओके, तो दो प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिए, और एक काम करता हूँ, मैंने तुम्हें न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए उस दिन एक भेजा था, मैं थोड़ा उसमें करेक्शन करके जो न्यूमेरिकल रिपीट हो रहा है उसको डिलीट कर देता हूँ, और डिलीट करने के बाद तुम्हें फ्रेश न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए भेज देता हूँ, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट थर्सडे आई वांट ऑल द न्यूमेरिकल्स टू बी डन, सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करके होने चाहिए। तो नेक्स्ट थर्सडे आफ्टर आवर रेगुलर लेक्चर आई विल टेक द सॉल्यूशंस। So yeah, we are finished with this numerical. Now we are going on the next topic or the next heading. यहाँ पे और भी एक्स्ट्रा टाइप्स के न्यूमेरिकल है, लेकिन आप जब सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा, बिकॉज हम लोग सेल कांस्टेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक तो हम लोग एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करते हैं, और दूसरा सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है? सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू L अपॉन A। व्हाट इज L? L का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड, और A का मतलब क्या होता है? A का मतलब होता है एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड, करेक्ट। तो इस टाइप के भी न्यूमेरिकल मैंने एक्सरसाइज में इन्वॉल्व कर लिए, तो प्लीज गो थ्रू देम एंड सॉल्व। ओके, now I'm starting with the next heading. Yes, now I'll start with the next heading, and that is yes, the new heading. Now we have finished everything. We have finished everything with the conductivity. We have finished everything with the molar conductivity. So all part are done. Now we are starting with the second topic of the electrochemistry. And the second topic of the electrochemistry is what? Electrochemical cell. Okay, electrochemical cell. Now what is electrochemical cell? Electrochemical cell means what? देखो cell का मतलब क्या होता है? Electrochemical cell means what? And
an electrochemical cell consists of an electrochemical cell consists of two metal plates और कार्बन मतलब ग्राफाइट रॉड dipped in इलेक्ट्रोलाइटिक और इलेक्ट्रोलाइटिक भी बोल सकते, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन या कंडक्टर. Here, what is electrochemical cell? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मतलब इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट, कि हमारे पास मेटल प्लेट्स रहेंगे और मे बी कार्बन मतलब ग्राफाइट के रॉड रहेंगे. तो आइदर वी विल हैव द मेटल प्लेट या मेटल रॉड, और वी विल हैव द कार्बन प्लेट और कार्बन रॉड, एंड दीज प्लेट्स और रॉड दे आर डिप इनटू व्हिच सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. तो उसे हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. अगर डायग्राम देखना है देखो, suppose for example we are having one beaker. Okay, in the beaker here we have taken the solution of sodium chloride, and we know that sodium chloride when dissolved in water it forms the ion, and substance which form the ions are called as what? Substance which forms the ion are called as a electrolyte. Substance which forms the ion are called as a electrolyte. मतलब जो सब्सटेंस वाटर के अंदर या अपने आप अगर आयंस फॉर्म कर रहे उन्हें बोलना इलेक्ट्रो. यहाँ पे बीकर में इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है और इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आप दो इलेक्ट्रोड डीप करोगे, इलेक्ट्रो. नाउ दे कैन बी मेड अप ऑफ मेटल और दे कैन बी मेड अप ऑफ ग्राफाइट, एंड दिस सेटअप इज कॉल्ड एज व्हाट, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. मतलब कभी भी अपने पास हमारे पास दो इलेक्ट्रोड है और दो इलेक्ट्रोड अगर कोई भी सॉल्यूशन में डीप किया रहेगा, लेकिन सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट होना. इलेक्ट्रोलाइट मतलब दिस सब्सटेंस शुड बी एबल टू फॉर्म इट्स आयन. यहाँ पे जो भी सब्सटेंस आप यूज करोगे वो क्या फॉर्म करना चाहिए, अपने आयंस फॉर्म करना चाहिए. और अगर सब्सटेंस अपने आयंस फॉर्म कर रहा है या कर सकता है, देन इट कैन बी कॉल्ड एज व्हाट, इलेक्ट्रोलाइट. इट इज कॉल्ड एज मतलब यहाँ पे जो हमारा सॉल्यूशन रहेगा वो कंपल्सरी क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए. और उसके अंदर हमें दो मेटल रॉड या दो मेटल प्लेट या ग्राफाइट इमर्स करेंगे या डीप करेंगे, देन इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. ओके, सेकेंड पॉइंट, द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन. लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के पहले मैं कंसेप्ट यहाँ पे स्टडी करूंगा इलेक्ट्रोड के बारे में. इलेक्ट्रोड, तो वी नो दैट यहाँ पे जो दोनों है इससे हम लोग इलेक्ट्रोड बोलेंगे. मेटल रॉड या मेटल प्लेट को क्या बोलोगे आप, इलेक्ट्रोड बोलोगे. या कार्बन ग्राफाइट है उसे भी क्या बोलोगे आप, इलेक्ट्रोड बोलोगे. तो वी नो दैट वी हैव टू इलेक्ट्रोड. व्हाट इज इलेक्ट्रोड, पहले इलेक्ट्रोड डेफिनेशन देखेंगे. इलेक्ट्रोड का मतलब व्हाट, इलेक्ट्रोड्स are the surfaces, electrode are the surfaces on which oxidation and reduction, half reaction take place. See here, what is electrode? मतलब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोड है. इलेक्ट्रोड कभी बोलेंगे हम लोग, अगर the electrode are the surfaces, electrode are the surfaces on which either oxidation or reduction will occur, then it is called as electrode. मतलब अगर हम लोगों ने ये मेटल रॉड अगर सॉल्यूशन में डीप कर दिया और मेटल रॉड सॉल्यूशन में डीप करने के बाद यहाँ पे या तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और या तो रिडक्शन हो रहा है इसके सरफेस के ऊपर. मतलब इलेक्ट्रोड हमारा इन्वॉल्व नहीं है, इलेक्ट्रोड हमारे रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, खाली इलेक्ट्रोड के सरफेस के ऊपर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोड के सरफेस के ऊपर क्या हो रहा है, आइदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है और रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है, तो हम उसे इलेक्ट्रोड. मतलब कोई भी मेटल हम लोग जो सॉल्यूशन में डीप करेंगे और उस मेटल के सरफेस के ऊपर अगर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है,
then that material or that metal or that metal plate or a rod can be called as what? Electrode. So what is electrode? The electrode are the surfaces, मतलब ये surface है, surfaces on which, और उनके मतलब कोई भी element के surface के ऊपर या कोई भी प्लेट या रॉड के सरफेस के ऊपर अगर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन अगर हो रहा है, then that surface मतलब जो मटेरियल है, the material can be called as what? Electrode. So what is electrode? The electrode are the surfaces on which either oxidation or reduction half reaction take place. मतलब अगर मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोड बोलूंगा तो इनके सरफेस के ऊपर क्या होगा? आइदर ऑक्सीडेशन होगा और आइदर रिडक्शन होगा. ओके, और ये जो इलेक्ट्रोड्स है सम टाइम दे टेक पार्ट इन द रिएक्शन, मतलब इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्ट लेते, बट सम टाइम इलेक्ट्रोड डू नॉट टेक पार्ट, मतलब खाली वो करंट कैरी करने के लिए हेल्प करेंगे, but electrode will not take part in the reaction. So here I just write down sentence. So electrode may participate or may not participate in the reaction. कैसे मैं आगे आपको एग्जांपल के साथ बाद में बता दूंगा. मतलब हम यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड जो यूज कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रोड हमारे रिएक्शन में पार्ट लेगा या रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा, डिपेंड. So electrode may participate or may not participate in the reaction, correct? And the electrode which do not take part in reaction are called as inert electrode, are called as a inert electrode. मतलब अगर हमारा इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्ट नहीं ले रहा है, खाली वो करंट कैरी करने के लिए हेल्प कर रहा है, बट एक्चुअली हमारे कोई भी सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट नहीं हो रहा है, कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन मतलब कोई भी आयन फॉर्म नहीं कर रहा है, मतलब खाली करंट कैरी करने के लिए हेल्प कर रहा है, सर्किट कंप्लीट करने के लिए हेल्प कर रहा है, लेकिन रिएक्शन में पार्ट नहीं ले रहा है. तो अगर हमारा इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्ट नहीं ले रहा है तो उस इलेक्ट्रोड को क्या बोलोगे आप? इनर्ट इलेक्ट्रोड. इनर्ट इलेक्ट्रोड. देखो हमने इलेक्ट्रोड के बारे में क्या स्टडी किया. ये मेटल रॉड है, either we can say metal rod or we can say metal plate or we can say graphite rod or graphite plate. उनके सरफेस के ऊपर क्या होगा? Either oxidation or reduction, and so this plates rod can be called as what? Electrode. These electrode may take part in the reaction or they may not take part in the reaction, but if they do not take part in the reaction then they can be called as what? Inert electrode. Inert, inert gases. Inert gases का मतलब क्या होता है? They do not take part in the reaction. तो यहाँ पे inert electrode का मतलब भी क्या है? It does not take part in the reaction. मतलब करंट कैरी करने के लिए हेल्प करेगा बट रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा. अभी हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स है. Normally, suppose अगर for example, if I am calling one electrode as a cathode, then the other electrode can be called as a anode. तो हमारे पास दो टाइप के इलेक्ट्रोड होते हैं, cathode and anode. So I'll just write down definition of cathode. So first I'll write cathode. Cathode. Now what is cathode here? What is cathode here? Cathode means what? It is an electrode at which reduction take place. मतलब हमारा जो कैथोड रहेगा
कैथोड के ऊपर हमेशा कौन सा रिएक्शन होगा, रिडक्शन रिएक्शन होगा कंपल्सरी। कैथोड बोला मतलब कैथोड के ऊपर कौन सा रिएक्शन होना चाहिए, रिडक्शन। व्हाट इज रिडक्शन मींस, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एट दिस इलेक्ट्रोड species or I can say substance has tendency to gain electron. Substance has a tendency to gain electron. मतलब जहां पे कैथोड रहेगा, कैथोड के ऊपर हमेशा रिएक्शन कौन सा होगा, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो भी सब्सटेंस रहेगा हमारा, जो भी सब्सटेंस कैथोड के ऊपर रहेगा या जो भी सब्सटेंस कैथोड के पास रहेगा, इट विल हैव अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। वो हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। कैथोड के ऊपर हमेशा रिएक्ट, मतलब आगे चल के कहाँ पे भी कैथोड तुम्हारे सामने अगर आया तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि कैथोड के ऊपर हमेशा कौन सा रिएक्शन होगा, रिडक्शन होगा। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिडक्शन, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। ओके, एनोड के बारे में। और दूसरा और एक पॉइंट यहाँ पे कैथोड, ओके हाँ उसके बारे में बाद में करेंगे कैथोड। अभी एनोड के बारे में डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। एनोड, anode, what is the anode here, it is an electrode at which oxidation takes place. ओके, इट इज एन इलेक्ट्रोड, मतलब ऐसा इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। मतलब एनोड कहाँ पे भी होने दो, कोई भी सेल होने दो, लेकिन एनोड के ऊपर हमेशा रिएक्शन कौन सा होगा, ऑक्सीडेशन होगा। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन, एट दिस इलेक्ट्रोड substance has a tendency to lose electron. Substance has a tendency to lose electron, correct? So anode मतलब क्या हुआ, it is an electrode at which oxidation होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो भी सब्सटेंस रहेगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। ओके, लूज करेगा इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे एनोड पे जो हमारा रिएक्शन होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एनोड पे जो भी रिएक्शन होगा विच कैन बी कॉल्ड एज व्हाट, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। और हमारा कैथोड पे जो भी रिएक्शन होगा उसे आप क्या बोलोगे, कैथोड के ऊपर जो रिएक्शन होगा उसे क्या बोलोगे आप, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो हमें मालूम है कैथोड पे होगा रिडक्शन रिएक्शन, उसे बोलना है रिडक्शन हाफ रिएक्शन। एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो उसे क्या बोलना है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। हाफ में बाद में नेक्स्ट लेक्चर में समझा दूंगा तो पता चलेगा। मतलब हाफ मतलब कैसे होता मालूम है, नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर एग्जांपल आ ही जाएगा। देखो हमारे पास दो इलेक्ट्रोड है, तो ये हमारा एनोड है, तो यहाँ पे क्या कौन सा रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन होगा, खाली ऑक्सीडेशन होगा। और ये हमारा कैथोड है और यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा, रिडक्शन होगा। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को ऐड करो तो हमारा कंप्लीट रिएक्शन बनेगा। तो एनोड पे जो रिएक्शन होता है उसे हाफ, कैथोड को जो बोलना है उसे बोलना है रिडक्शन हाफ। और दोनों हाफ रिएक्शन को अगर ऐड करोगे और उनसे जो आपको रिएक्शन मिलेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। उसे क्या बोलना है हमें, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। तो नेक्स्ट हेडिंग में लास्ट और एंड करूंगा वहां पे। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारा रहेगा इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में जब रहूंगा, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में मैं तुम्हें प्रॉपर एक्सप्लेन कर दूंगा
कि हाफ का मतलब कैसे होता है प्रॉपर एग्जांपल के साथ. अभी व्हाट इज नेक्स्ट हेडिंग वी आर हैविंग इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन. इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन मतलब क्या होता है? देखो ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है. अभी हमें देखा ये सेल है, सेल में है दो मेटल है. दो मेटल क्या एक्ट करे? एक एक्ट कर रहा है एनोड और दूसरा एक्ट कर रहा है कैथोड. एनोड पे रिएक्शन कौन सा होगा? ऑक्सीडेशन. कैथोड पे रिएक्शन कौन सा होगा? रिडक्शन. और अगर मैंने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों अगर ऐड कर दिया तो उसे हमें क्या बोलना है? इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन. मतलब यहाँ पे सेल के अंदर जो रिएक्शन होगा that reaction are called as what? इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन. ये हमारा सेल है और सेल के अंदर जो रिएक्शन होगा उसे बोलना है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन. व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन? द केमिकल रिएक्शन occurring in electrochemical cell. The chemical reaction occurring in electrochemical cell which involves transfer of electron from one species to the other are called as the electrochemical reactions. What is electrochemical reaction? The chemical reaction occurring in the electrochemical cell or which involves what? Transfer of electron. Transfer of electron क्यों मालूम है? देखो एनोड मतलब ऑक्सीडेशन, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज होगा, और कैथोड मतलब रिडक्शन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन होगा. मतलब एक सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और दूसरा सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और इलेक्ट्रॉन लॉस एंड इलेक्ट्रॉन गेन इलेक्ट्रॉन में जहां पे इन्वॉल्व होगा उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन. सो व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन? द केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन द सेल and which involves transfer of electron from one species to the other are called as the electrochemical reaction. ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या स्टडी किया? देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में. देखो व्हाट इज सेल? सेल का मतलब इट कंसिस्ट ऑफ द मेटल प्लेट और ग्राफाइट रॉड एंड दे आर डिप्ड इनटू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आर कॉल्ड एज द सेल. ये जो मेटल प्लेट और रॉड है उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड बोलेंगे. Why we are calling them as the electrode? Because on their surface either oxidation or reduction will occur. Correct? और बाद में दो इलेक्ट्रोड कौन से होते हैं? कैथोड, जहाँ पे हमेशा कौन सा रिएक्शन होगा? रिडक्शन होगा, मतलब they will have tendency to gain electron. और एनोड पे हमेशा रिएक्शन कौन सा होगा? ऑक्सीडेशन होगा, मतलब वहां पे जो भी सब्सटेंस रहेगा it will have a tendency to lose electron. और ऑक्सीडेशन रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन को अगर दोनों को ऐड करोगे तो उसे हमें क्या बोलना है? इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन. मतलब रिएक्शन ऑकरिंग इन द सेल एंड व्हिच इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन. ओके, तो विद दिस आई विल स्टॉप इट ओवर हियर. लेकिन मैं इंस्ट्रक्शन आपको दे रहा हूँ,